आई लॉस्ट माई इंडियन पासपोर्ट। ओके, सो फाइनली इंडियन कॉन्सुलेट पहुंच गया हूँ। यहाँ पे इंडिया का झंडा दिख रहा होगा। Hey guys, what's up? How are you all? Once again, welcome back to the channel. I lost my Indian passport. ये एक ऐसी चीज़ है ना, ये किसी के साथ भी हो सकती है। स्पेशली इट कैन बी वेरी डॉन्टिंग एंड इट कैन हॉन्ट यू इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और इफ़ यू आर वर्किंग इन द यूएस, या फिर अगर आप ट्रिप पे भी आए हो, आपके साथ कभी भी हो सकता है। बिकॉज काफ़ी बार आपको लाइक एज अ फॉर्म ऑफ आईडी, अगर आप इवन एज अ स्टूडेंट हो इनिशियल डेज में, या फिर आप टूरिस्ट हो, आपको मोस्टली हर बार आपका पासपोर्ट लेके हर जगह लेके घूमना पड़ता है, कभी कभार एज अ फॉर्म ऑफ आईडी। एंड ऐसे टाइम पे इट इज़ वेरी कॉमन कि वी कैन लाइक लूज़ योर पासपोर्ट। वॉट टू डू? आप किसी और देश में हो, यू डोंट नो वॉट टू डू, किसके पास जाना चाहिए। तो ये सारे सवाल और इनके साथ और बहुत सारे सवाल एंड अ लॉट मोर एंड व्हाट द कॉन्सुलेट डज, ये सारे सवाल आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी रियली रियली वेरी यूजफुल, स्पेशली इफ यू आर अ स्टूडेंट who's coming to the US, if you're a tourist who's coming to the US. All sorts of questions are going to be answered in this video. And right now I am in the Consulate General of India in New York City. So let's go. ओके, सो अभी मैं हूँ इन द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, लाइक आई टोल्ड यू गाइज, विद द कॉन्सल जनरल हिमसेल्फ. मीट मिस्टर रणधीर जायसवाल. Hello everybody, and Ashish, thank you very much for being with us. It's a pleasure, and we deeply appreciate your support and contribution to the consulate and in bringing the consulate to the doorstep of each and every Indian here. Thank you so much, and firstly thank you so much for considering YouTube as one of the medias that you want to like reach out to the public. To it, as a YouTuber myself, it actually gives me a lot of pleasure that the consulate, the government is actually looking at YouTube as like a legit stream of media. So to start with, like let's get into it as soon as possible. So अगर मैं यहाँ पे हूँ as a student in the US, as a working professional in the US, or even as a tourist in the US, so ऐसे like क्या काम है, या फिर like when can I come to the consulate, or for what to, or to get like what work done I can come to the consulate. So the Consulate General of India, we are right now at we are together here in the consulate building. We are located on the 64th Street between Madison and 5th in Manhattan. Consulate is like a home for every Indian. We have a large diaspora here. We have a large number of students who are studying in the United States. We also have business visitors. We also have visitors of other kinds, people who come for family reunions, tourists, etc. For all of them, the consulate is like a home. Okay. Now, people visit us for various reasons, and our doors are always open for them. We have a lot of business activities. All our business stakeholders visit the consulate for that reason. We have roundtable format meetings. We also have one-to-one meetings. That's on the economic side. We also have consulate is a center of art and culture. We promote a lot of Indian art forms and several other art forms, and we try to build new bridges of cultural understanding, mutual understanding. Then of course we also have people visiting in numbers for consular services. Okay. We issue passports, we issue OCI documents, renunciation certificates, we also give visas, we also attest power of attorneys. A lot of Indians here, a lot of people of Indian American community living here, but they have properties, they have several other economic activities going on in India. For that they need papers, they need documentation. So we are here to help them, and in the process help build India-US friendship, partnership, collaboration, cooperation, and strengthen this very special partnership that we have with this great country. Okay, that was a lot that the consulate does, and one thing that you can definitely take and you should make note of, which the consul general himself said, कि you can consider the consulate as your home. मतलब अगर आपको कोई भी आपका काम है, if you don't know where to go, especially अगर आप अकेले रह रहे हो, अगर like if you don't know a lot of people, you can just come to the consulate and they will help you guys. So this is the most important thing to take from this. Now coming to the question which I was like really very much interested in, as in like जो मुझे जानना ही है कि if I'm a student, if I'm a tourist, or if I'm a working professional, for whatever reason I'm here in the US and I lose my Indian passport,
मुझे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है। आई एम गोइंग टू पैनिक लाइक एनीथिंग। मुझे पता नहीं होने वाला है कि आज मुझे क्या करना चाहिए। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो आफ्टर यू लूज एन इंडियन पासपोर्ट, एंड इज़ इट पॉसिबल टू रिन्यू, और लाइक रिन्यू की तो हम बाद में बात करेंगे, बट इफ़ आई लूज माई पासपोर्ट, इज़ इट पॉसिबल टू गेट एन इंडियन पासपोर्ट हियर इन द US while आई एम इन द US प्रेजेंट? तो आशीष, आपने बहुत वैलिड सवाल पूछे मेरे से, लेकिन आपकी अगर परमिशन हो तो उससे पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। कोविड के समय में हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे इंडियन प्रोफेशनल्स को, जिनको तमाम तरीके की दिक्कत थी, हम लोगों ने उनको मदद पहुँचाई। ओके। कई लोग को मेडिसिन की ज़रूरत थी, कई लोग को कमरों की ज़रूरत थी, होटल की ज़रूरत थी, खाना की ज़रूरत थी, वो सब भी काम लोग किया। और एक और फंक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है कि जो हमारे समुदाय के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत सारे कम्युनिटी फंक्शन होते हैं। अभी कल की बात है, हम लोगों ने इंटरनेशनल, परसों की बात है, इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे में राजस्थानी भाषा और राजस्थानी संस्कृति कल्चर को मनाया। तो नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ लॉस्ट पासपोर्ट, येस, इफ़ यू लूज ए पासपोर्ट, फर्स्ट थिंग, डोंट पैनिक। If you lose your passport, the first thing that we require you to go and report the incident to the nearest police station. Okay. They will give you a report. There's a preliminary report, and there's also a detailed report. Now, if an Indian student or Indian traveler loses his passport, go to the police station, and the first thing that I would do is that please drop us an email. Okay. Our emails are there on the website. Please drop us an email, and also send us, if you want, a communication on Pramit. Okay. Pramit प्रवासी मित्र से प्रमित बनता है। अच्छा। तो हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो देखेंगे वहाँ प्रमित है। प्रमित में जाके आप एक क्वेरी जनरेट करके हमको सवाल भेजिए, हम लोग आपको गाइड करेंगे। लेकिन सिंपल सवाल तो यहाँ ये है कि आपने पुलिस रिपोर्ट की, उसके बाद आप जो है सो पासपोर्ट का फॉर्म भरिए। पासपोर्ट का फॉर्म भरने के बाद VFS का जो वेबसाइट है, हमारा आउटसोर्सिंग एजेंसी है, वहाँ जाके अप्लाई कर दीजिए। ओके। अप्लाई करने के बाद वो हमारे पास आएगा, we'll do the background check, and thereafter passport will be issued. Passport in several cases will be issued immediately, in a day or 2 or 3 depending on the urgency you have. If there are some reason for which we are not able to issue a passport in case of in the lost category, we'll try to help. We'll try to speak to organizations in India from where we need clearance, and we'll try to do our best. In most of the cases we have been able to help and people have been able to travel. एक और केस होता है कि किसी कारण से मान लीजिए कि लॉस, आपका पासपोर्ट गुम हो गया, आपने अप्लाई किया लेकिन उसको देने में हम लोग को टाइम है, या आपको 12 घंटे के अंदर इंडिया जाना है, हवाई जहाज आपका छूटने वाला है, ऐसे केस में हम लोग इमरजेंसी सर्टिफिकेट देते हैं। वो भी पासपोर्ट जैसा देखने में लगता है, लेकिन उसका नाम है इमरजेंसी सर्टिफिकेट। इट इज़ वैलिड फॉर 1 वे ट्रैवल। ओके। तो इंडिया, यहाँ से आप इंडिया जा सकते हैं, सिर्फ इंडिया जा सकते हैं। उसके बाद वो खत्म हो जाता है, लेकिन वहाँ जाके आप अपना आराम से पासपोर्ट बना सकते हैं। ओके, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। ओके। एक क्वेश्चन जो मुझे फिर इसमें बहुत क्यूरियस करता है कि सो व्हाट हैपेंस टू द वीज़ास दैट वर देयर ऑन द पासपोर्ट? अच्छा, जहाँ तक वीज़ा का सवाल है, वीज़ा का कॉपी आपके पास होगा। मेरा ये मानना है कि जितने हमारे लोग हैं, आप लोग पासपोर्ट का कॉपी और वीज़ा का कॉपी तो खैर क्लाउड में तो रखते होंगे, तो वीज़ा का कॉपी लेके आप यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ में जाएंगे तो वो लोग फिर उसको रिन्यू कर देते हैं। ओके। अगर इंडिया से आपने लिया है तो इंडिया में जाके यू कैन से दैट द पासपोर्ट वाज लॉस्ट, रिपोर्ट वगैरह दिखाएंगे, वो सब करा के तो फिर वो नया स्टिकर जनरेट करके आपको लगाते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है, लेकिन हो जाता है। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू गेट द इंडियन पासपोर्ट एंड उसके बाद यू कैन गेट एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। करेक्ट। ओके, एंड अगर मुझे फिर लाइक इफ माई पासपोर्ट इज़ वैलिड बट इट्स गोइंग टू एक्सपायर और मुझे अगर रिन्यू करना होगा तो भी वो यहाँ से हो सकता है बिफोर, लाइक विदाउट गोइंग टू इंडिया? हाँ, अगर आपका पासपोर्ट वैलिड है और एक्सपायरी ख़त्म होने वाला, आप यहाँ बेशक अप्लाई कीजिए। हम लोग देखते हैं कि आपका स्टेटस यहाँ सही है कि नहीं। ओके। अगर स्टेटस सही होता है तो हम लोग पासपोर्ट यहाँ इशू करते हैं, रिन्यू कर देते हैं। आप टूरिस्ट के केस में बोल रहे हैं, स्टूडेंट के केस में बोल रहे हैं? स्टूडेंट, या फिर अगर कोई स्टूडेंट है, अगर यहाँ रह रहा है वर्क, तो उसका तो करते ही नॉर्मल है। ओके। उनका तो मतलब उनका इंडिया जाने का कोई मतलब नहीं, उनका यहीं से रिन्यू जाता है। उनका H1B वीज़ा होगा या कोई और वीज़ा हो या ग्रीन कार्ड होगा उनके पास, तो स्टेटस के बेसिस पे फिर हम लोग इसको रिन्यू कर देते हैं।
Okay. B1 B2 केस में जहाँ तक होता है कि लोग 6 महीने के लिए आते हैं या 6 महीने से कम के लिए आते हैं। अगर वैसे केस में अगर उनका पासपोर्ट गुम हो गया या कुछ हो गया तो फिर हम लोग उनको शॉर्ट वैलिडिटी पासपोर्ट देते हैं 5 साल का। ओके। और मतलब ये जो रिन्यू का केस है और जो लॉस्ट पासपोर्ट वाला केस है, तो जैसे अगर आप इंडिया में फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो या फिर रिन्यू कर रहे हो तो हर बार पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो अगर हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हो तो फिर भी वो इंडिया में पुलिस वेरिफिकेशन होगा? इंडिया में अगर इंडियन एड्रेस है तो वहाँ पर एक ट्रिगर जाता है, लेकिन हम लोग उसको अगर आपका पहले से पुलिस रिपोर्ट है, कोई एडवर्स नहीं है, तो हम लोग उसको पासपोर्ट इशू करते हैं। Okay. और पुलिस वेरिफिकेशन होता रहता है पीछे से। Okay. तो उसका कोई बेयरिंग नहीं है। कुछ केसेस में अगर इंडिया में 10 साल पहले भी आपको कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो उस केस में हम लोग वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन के बाद देते हैं। Okay. लेकिन केस बाय केस कभी कभी इस प्रकार के कुछ मुश्किलात होता है, लेकिन उसको हम लोग वी स्पीक टू लोकल अथॉरिटीज बैक होम इन इंडिया, वी ट्राई टू गेट इट एक्सपीडिटेड, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग यहाँ अप्लाई करते हैं तो उनको क्योंकि उन्होंने नंबर दिया है, लोकल नंबर भी देते हैं इंडिया का, यहाँ का नंबर भी देते हैं, तो एक ट्रिगर जनरेट होता है पुलिस वेरिफिकेशन का। दैट इज़ अ रूटीन थिंग। ओके। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट trigger is generated, but we do not wait for the police verification to come. We issue the passport based on the documents that we have. Only in exceptional and certain cases that police verification is required, and if at all, if there is some delay or something, there's something gets stuck, we try to solve it. We try to call up local authorities and get it done. ओके। सो अबाउट द पासपोर्ट एक आखिरी सवाल था कि अगर मेरे पासपोर्ट में सिर्फ 6 महीने की वैलिडिटी बाकी है तो फिर भी क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ या फिर मुझे पहले ही अप्लाई कर लेना चाहिए नए पासपोर्ट के लिए? नए पासपोर्ट के लिए देखिए, अप्लाई करने के लिए 1 साल से कम की अवधि है तो हम लोग आपकी पासपोर्ट एप्लीकेशन ले लेते हैं। लेकिन चूंकि आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको इंडिया जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे 6 महीना हो चाहे 2 महीना, क्योंकि घर तो आपका वहाँ है ना। Yes. देश आपका वहाँ है। शॉर्ट वैलिडिटी, ये पासपोर्ट जिसमें शॉर्ट वैलिडिटी होती है, 6 महीने से कम वैलिडिटी होती है, उसमें आपको मालदीव जा रहे हैं, मान लीजिए यूके जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम करेंगे। ओके। वो वीज़ा आपको 6 महीने से कम जब होता है पासपोर्ट तो नहीं देते हैं। Okay. और एक प्रकार से ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस है जो सब लोग, बहुत सारे कंट्रीज़ को फॉलो करते हैं। ओके। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, बहुत सारे इमरजेंसी केसेस में मैंने देखा है कि लोगों का अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के मेंबर हैं, उनके पास OCI कार्ड है, लेकिन उनका पासपोर्ट सिर्फ 5 महीने या 4 महीने वैलिड है, लेकिन इंडिया जाना ज़रूरी है। तो ऐसे केसेस में हम लोग वहाँ इंडियन अथॉरिटीज़ नहीं रोके, क्योंकि उनके पास वैलिड एक OCI कार्ड है। तो वो हम लोग जब वीज़ा लेने कोई आता है हमारे हमसे, तब हम देखते हैं कि वो 6 महीने की वैलिडिटी है कि नहीं। ओके। लेकिन बहुत सारे केसेस मैंने देखा है OCI कार्ड होल्डर्स भी हमारे पास आते हैं कि जी हमारा जो पासपोर्ट है वो 6 महीने से कम है, क्या हमको इंडिया में कोई रोकेगा? नहीं, आपको कोई नहीं रोकेगा। Okay. Yes, I think that was a lot of information. Do let me know in the comment section अगर आपको कोई और questions है, और what you can do is just go to the website and जैसे कि सर ने कहा कि आप डायरेक्ट उनके वेबसाइट पे जाके चैट बॉक्स है तो चैट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो सवाल, या फिर shoot a DM on any of the social media channels of the consulate or just call them up. आपको definitely आपके सारे questions का आंसर मिल जाएगा. Do let us know how you guys like this video. I know it was a lot of information, but yeah, I think this was necessary कि आपको ये सारी जानकारी थ्रू डिफरेंट फॉर्म ऑफ मीडिया पता चले. सो आई वांट टू थैंक मिस्टर रणदीप वंस अगेन टू हैव मी हियर एंड हैव दिस फॉर्म ऑफ मीडिया यूट्यूब हियर to like spread all of this wonderful information. I'll link all the social media channels of the consulate down here in the description box below, so make sure you go and check it out. And next वाले vlog में आप देखो कि consulate का काम कैसे होता है, what the workload is over here and what happens behind the scenes. So make sure you check the next vlog as well. I'll see you in the next one. Till then, stay